Hello students, now we are going to start electric dipole. We will learn about electric dipole and field intensity due to electric dipole. First of all, we are going to discuss about the electric dipole. What is electric dipole? Electric dipole, when two equal and opposite charges are separated by a small distance, then electric dipole is formed. When two equal and opposite charges are separated by a small distance, then electric dipole is formed, or the resulting structure is the electric dipole. Electric dipole minus q charge plus q charge, and it is the line joining two charges, and it is the center of dipole. The distance between the two charges is taken as 2a. A, that is 2a. इलेक्ट्रिक माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज के बीच की डिस्टेंस 2a लिखी जाती है. इलेक्ट्रिक डाइपोल इज रिप्रेजेंटेड बाय electric dipole is represented by a term called electric dipole moment. Electric dipole moment, vector P. Vector P shows the strength or power of electric dipole. It is defined as vector P equals to magnitude of any one charge, that is q, into separation between the two charges, q into 2a, or its direction is from negative to positive charge on dipole axis. What is the dipole axis? The vector electric dipole moment की डायरेक्शन है जो वेक्टर P, it is given by negative to positive charge along this direction, negative charge to positive charge. SI unit is कूलाम इंटू मीटर. SI यूनिट इसकी कूलाम इंटू मीटर से दी जाती है. और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर P से शो होता है, वेयर Q इंटू 2a, वेयर Q इज द either of one charge Q and 2a. 2a is the separation between two charges. Now
we are going to discuss about the ideal dipole. So what is ideal dipole? Ideal dipole. Ideal dipole. What is ideal dipole? If we think about a type of dipole in which the charge q tending to infinity but the separation 2a tending to 0, अगर हम एक ऐसे डाइपोल के बारे में बात करें जिसके अंदर है जो q टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो एंड सेपरेशन 2a टेंडिंग टू 0, but the product q into 2a remains finite. अगर हम एक ऐसे डाइपोल के बारे में बात करें या ऐसे डाइपोल के बारे में हम सोचें जिसके अंदर q जो कि किसी एक चार्ज की वैल्यू है वो तो बहुत ज़्यादा लार्ज हो, लेकिन उनके बीच का सेपरेशन जो है बहुत स्मॉल हो, तो ऐसे डाइपोल को हम है जो आइडियल डाइपोल और पॉइंट डाइपोल बोलते हैं। आइडियल डाइपोल और पॉइंट डाइपोल कहते हैं। जितने भी मॉलिक्यूलर डाइपोल्स है और एटॉमिक डाइपोल्स है, फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर डाइपोल एग्जांपल जैसे HCl, तो इसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच का इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्लाइटली डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स द क्लोरीन, तो इट एक्वायर्स माइनस डेल्टा क्यू चार्ज एंड इट एक्वायर्स प्लस डेल्टा क्यू चार्ज. इट मीन्स it is the point dipole, it is the molecular dipole, it is the point dipole or ideal dipole. Separation between hydrogen and chlorine is very small. Again, in case of Na, chlorine, sodium chloride, it is माइनस डेल्टा और इसके ऊपर चार्ज आता है प्लस डेल्टा है. तो NaCl, HCl, NaCl, वाटर HOH. अब हमको पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई है, ज़्यादा है, तो माइनस डेल्टा, इसके ऊपर चार्ज आएगा प्लस डेल्टा. इसी टाइप से इसके ऊपर चार्ज आएगा माइनस डेल्टा और इसके ऊपर चार्ज आएगा प्लस डेल्टा. तो माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, तो यहाँ आ जाएगा प्लस 2 डेल्टा. तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इस और वेक्टर P1 और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इस और वेक्टर P2. तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पॉइंट डाइपोल्स. ये पॉइंट डाइपोल्स के एग्जांपल है. इलेक्ट्रिक डाइपोल का ही एक स्पेशल केस जब है जो चार्ज जो है, दो चार्ज इक्वल और अपोजिट में से चार्ज जो है चार्ज वेरी लार्ज रहे, दैट इज़ द टेंडिंग टू इन्फिनिटी एंड द सेपरेशन बिटवीन plus q and minus q is very small. In that case, the dipole is said to be ideal dipole or point dipole. Now, the electric field due to dipole, we are going to discuss about the electric field due to dipole. Electric field due to dipole. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, अगर हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले डिराइव करें एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट पे, तो एट एक्सियल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल्स टू ट्वाइस Kp अपॉन R क्यूब, ट्वाइस Kp R क्यूब P कैप. तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब. यानी एक्सियल पॉइंट के ऊपर, एक्सियल पॉइंट मतलब
if we find electric field intensity at axial point, the line joining plus q and minus q charge if extended, and we get electric field intensity due to the electric dipole, we will get the expression twice kp over r cube p cap. So this expression shows the electric field intensity is inversely proportional to r cube, whereas we know that the due to point charges electric field intensity varies as inversely proportional to r square. And for equatorial point, at equatorial point E equals to kp r cube minus p cap. तो इट मीन्स E इज अगेन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब. तो इसका मतलब डाइपोल फील्ड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब के अकॉर्डिंग वेरी करता है, जबकि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होती है. और इसका एक रीज़न जो है हम यहाँ एनालिसिस करेंगे, इन फार्मूला को डिराइव करेंगे. इसका रीज़न जो है वो रीज़न ये है कि चूंकि वहाँ सिंगल चार्ज नहीं है डाइपोल वाले केस में, एक प्लस क्यू चार्ज है एक माइनस क्यू चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो जाते हैं. फॉर लार्जर डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरीज as inversely proportional to r cube. It means the electric field intensity falls off rapidly in comparison to the electric field due to a single charge. Single charge के रेस्पेक्ट में, सिंगल चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल वो है जो रैपिडली, ज़्यादा तेज़ी से जो डिक्रीज होती है एज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, बिकॉज द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक field intensity are cancelled because we have two charges plus q and minus q. So at any point the components of electric field intensity due to plus q and minus q cancel out, so electric field at fall off rapidly. Understand? Now we will discuss the electric field intensity at axial point due to electric dipole. Electric field intensity at axial point. Electric field intensity at axial point. It is an electric dipole minus q and plus q. It is the center of dipole, and let it is point P. The separation between center of dipole and point P is small r. We have to find the electric field intensity at the given point P, that is +1 कूलम पे आपको फोर्स फाइंड करना है, माइनस क्यू चार्ज के कारण और प्लस क्यू चार्ज के कारण. नाउ field intensity at P due to minus Q charge. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माना कि हम E1 से शो कर रहे हैं, तो यहाँ अगर +1 कूलम में रखूँ तो प्लस कूलम पे लगने वाला फोर्स वो इस डायरेक्शन में वर्क करेगा, प्लस कूलम. तो यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. इट मीन्स ये वाली डायरेक्शन वेक्टर पी की डायरेक्शन, तो माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पी पॉइंट पे वो हो जाएगी के क्यू आर प्लस ए, आर और ए, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, and it is along minus p cap. P cap is the unit vector along the direction of vector p. P cap की डायरेक्शन ये है लेफ्ट टू राइट, that is from negative charge to positive charge, और minus p cap means it is directed along this direction, due left. So electric field intensity is due left की ओर है. Field intensity
at P U2 plus Q charge, that is E2 प्लस Q चार्ज के कारण इस पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी दैट इज फोर्स ऑन प्लस 1 कूलम्ब चार्ज, बिकॉज इट इज प्लस Q कूलम्ब चार्ज, सो इट विल रिपेल प्लस 1 कूलम्ब चार्ज, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी along this direction. It is vector E2 and ये वेक्टर E1. माइनस Q चार्ज के कारण फील्ड इंटेंसिटी लेफ्ट साइड में और प्लस Q चार्ज के कारण फील्ड इंटेंसिटी राइट साइड में. नाउ वेक्टर E2 दैट इज KQ, द डिस्टेंस बिटवीन प्लस Q चार्ज एंड पॉइंट P दैट इज R माइनस A. यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R है और उसमें से ये डिस्टेंस A है, तो R माइनस A का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन जो है वो अलॉन्ग P कैप राइटवर्ड्स. नाउ वी विल ऐड देम वेक्टोरियली. हम इसको वेक्टर वाले मेथड से ऐड करेंगे. वेक्टर E नेट फील्ड इंटेंसिटी दैट इज E1 प्लस E2. तो E2 को मैं पहले लिख देता हूँ KQ R माइनस A का होल स्क्वायर P कैप, और E1 को अब लिखते हैं हम प्लस KQ R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस P कैप. नाउ KQ को कॉमन लेंगे हम और LCM लेंगे. LCM आएगा हमारे पास R माइनस A R प्लस A का होल स्क्वायर और P कैप. यहाँ ये माइनस साइन है जो हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे. अगर हम शिफ्ट करना चाहें तो हम यहीं से शिफ्ट कर देते हैं, ये माइनस साइन. नाउ KQ P कैप ये हो जाएगा R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर. अगर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम तो वेक्टर E इक्वस टू हो जाएगा KQ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस 2AR P कैप, और इट इज R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर. नाउ R स्क्वायर कैंसिल, A स्क्वायर कैंसिल, दैट इज 4AR KQ 4AR R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड P कैप. अब हम इसको रीअरेंज करेंगे. मैं इसको लिख सकता हूँ वेक्टर E इक्वल्स टू 2KQ इंटू 2A R, ये वाला R P कैप R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर. Since dipole is short in length, अगर डाइपोल है जो लेंथ में शॉर्ट हो, implies in that case A square is very very less than R square, so A square
नेग्लेक्टेड, वी कैन नेग्लेक्ट ए स्क्वायर। अगर आपका डाइपोल है जो बहुत शॉर्ट हो, लाइक पॉइंट डाइपोल, तो उस केस में जो ए को नेग्लेक्ट किया जा सकता है, बिकॉज ए इज वेरी वेरी स्मॉल सेपरेशन, द टोटल सेपरेशन इज 2a एंड ए इज द हाफ ऑफ द टोटल सेपरेशन, सो वी कैन नेग्लेक्ट ए स्क्वायर इन कंपेरिजन टू आर स्क्वायर। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, इस वैल्यू को हम पुट करेंगे वेक्टर E इक्वल्स टू ट्वाइस के Q इंटू 2a P, it is the magnitude of electric dipole moment Q into 2a R, or a square is neglected, so it is R raised to the power 4 P cap. Now काट देंगे हम R को, तो ट्वाइस के पी R क्यूब P cap. So electric field intensity at any axial point, that is twice के पी R cube R cap, P cap, sorry, P cap. It is the expression for electric field intensity at any axial point due to an electric dipole, and we clearly observe that E is varying as inversely proportional to R cube. It varies, it decreases faster than electric field due to a point charge. Now we will discuss the field intensity at any equatorial point due to an electric dipole. Electric field intensity इक्वेटोरियल पॉइंट पे, केस 2 field intensity at any equatorial point. Equatorial point, it is the point on perpendicular bisector actually, minus q plus q, it is the center of electric dipole. Now we assume a point on perpendicular bisector, it is the perpendicular bisector O is the center of dipole, it is point P where electric field intensity to be calculated. हमको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, इट इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और आप है जो माइनस क्यू को P से जोड़ेंगे और P को प्लस क्यू से भी मिला देंगे। यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन A और यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन अगेन A, और ये डिस्टेंस R है, O से P तक की डिस्टेंस R है। इसके बाद माइनस क्यू चार्ज के कारण P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, और इसके बाद प्लस क्यू चार्ज के कारण फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन लिखेंगे और उनका वेक्टर सम करेंगे। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्यों? क्योंकि दिस डिस्टेंस इक्वल्स टू दिस डिस्टेंस, बिकॉज इट इज रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और इट इज ऑल्सो रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सो इट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, सो दिस थीटा। अब हम क्या करेंगे कि पॉइंट P से हम है जो इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। पॉइंट P से इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। वी आर ड्रॉइंग ए लाइन विच इज पैरेलल टू द डाइपोल एक्सिस के पैरेलल। वो लाइन इस टाइप से है और इस लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि ये लाइन और ये लाइन चूंकि एक दूसरे के पैरेलल है, दैट मीन्स
and it is the transversal, so this angle will be theta. This angle and this angle will be same, and in the same way this angle and this angle will be also same because they are alternate angle and these are the corresponding angles. Now field intensity due to minus q charge, it will be along this direction. माइनस क्यू चार्ज के कारण फील्ड इंटेंसिटी पी पॉइंट पे +1 कूलम पे लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में वर्क करेगा, और प्लस क्यू चार्ज के कारण +1 कूलम पे लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में वर्क करेगा। लेट वो इस लेंथ के एरो से शो हो रहा है। हाँ, नाउ फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी at P due to minus q charge, that is E1 kq by this square of this distance, it is root a square plus r square and the square of the whole term, root a square plus r square, and directed from P to A. Let this point be A and this point be B. So directed from P to A, directed along PA, along PA. Now field intensity due to plus q charge, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी दैट इज E2 KQ, दिस स्क्वायर ऑफ दिस डिस्टेंस अपॉन में आएगा, तो दैट इज अगेन रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड इट इज़ डायरेक्टेड अलोंग BP, इस और जो वर्क करेगी, डायरेक्टेड अलोंग BP। अब हम क्या करेंगे, हम ये नोट कर रहे हैं कि वी ऑब्जर्व दैट कि E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है, इनके मैग्नीट्यूड सेम है, ये मैग्नीट्यूड्स हैं। इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 एंड इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर E2। तो वी ऑब्जर्व दैट E1 इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू E। E1 और E2 बराबर हैं और वो E के बराबर हैं। E और E इक्वल्स टू है KQ A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। हमने जो उसको E मान लिया, लेट E। E1 और E2 के मैग्नीट्यूड सेम है। अब हमको क्या करना चाहिए कि E1 और E2 के हम कंपोनेंट्स करेंगे। E1 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा E1 cos थीटा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा E1 sin थीटा। इसी टाइप से E2 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा E2 cos थीटा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा E2 sin थीटा। हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा टर्म एक दूसरे के अपोजिट वर्क कर रही है, और E1 और E2 के चूंकि मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए E1 sin थीटा और E2 sin थीटा की वैल्यू इक्वल रहेगी। तो ये बिकॉज बोथ बीइंग इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल आउट, ये दोनों टर्म एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है, एंड नेट फील्ड इंटेंसिटी विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन। इट इज एंटी पैरेलल टू वेक्टर P। वेक्टर P की डायरेक्शन इधर है और नेट फील्ड इंटेंसिटी होगी आपके इस और, दैट इज एंटी पैरेलल टू E। सो we will find the net field intensity net
फील्ड इंटेंसिटी, नेट फील्ड इंटेंसिटी ई आर, वेक्टर ई आर, दैट इज E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा का सम करना है। E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और डायरेक्शन चूंकि इस और है, तो चूंकि ये वाली डायरेक्शन पी कैप की डायरेक्शन है, इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ पी कैप। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस और है, और ये वाली डायरेक्शन है माइनस पी कैप, माइनस पी कैप। तो चूंकि नेट फील्ड इंटेंसिटी माइनस पी कैप की ओर है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे माइनस पी कैप। नाउ चूंकि E1 और E2 के मैग्नीट्यूड सेम है एंड H इक्वल्स टू E माना है हमने, तो हम लिख देंगे इसको 2E cos थीटा माइनस पी कैप। नाउ 2E इक्वल्स टू E1 और E2, तो हम किसी एक की वैल्यू पुट करें, KQ A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर एंड cos थीटा की वैल्यू हम इस ट्राइंगल से फाइंड करेंगे, इट इज़ द राइट एंगल ट्राइंगल बिकॉज इट इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इट इज़ द इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटर, इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ डाइपोल। तो cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज A अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर एंड माइनस पी कैप। नाउ वी आर रीअरेंजिंग Q into 2A, Q into 2A minus P cap and divided by A square plus R square whole raised to the power 3/2। A square plus R square की पावर 1 है और यहाँ रूट A square plus R square है, इट मीन्स we can write A square plus R square whole raised to the power half, whole raised to the power half of A square plus R square, or A square plus R square into, that is A square plus R square whole raised to the power 3/2. It is the field in the ER. We can write ER equals to KP, Q into 2AP, and we can neglect A square in comparison to R square as we have done in earlier case। पहले वाले केस में हमने A square को neglect किया, डाइपोल इज वेरी शॉर्ट इन लेंथ, इफ डाइपोल इज वेरी शॉर्ट इन लेंथ दैट इज R इज वेरी ग्रेटर देन A, in that case A square can be neglected, so we can write R cube R square, A square को नेग्लेक्ट करेंगे R square बचेगा, ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा तो R क्यूब, और ये हो जाएगा माइनस पी कैप। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, एंड वी ऑब्जर्व दैट हियर ई आर इज ऑल्सो वेरीज एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। पहले वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने जो ऑब्टेन की एक्सियल पॉइंट के लिए, तो ई एक्सियल दैट इज ट्वाइस के पी अपॉन आर क्यूब, और ई इक्वेटोरियल इक्वेटर, तो दैट इज के पी बाई आर क्यूब। तो इसका मतलब इन दोनों से कंक्लूजन निकलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट इज ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट हैविंग द सेम डिस्टेंस फ्रॉम डाइपोल सेंटर। इसका मतलब है कि अगर हम एक्सियल पॉइंट पे एक्सिस के ऊपर, डाइपोल की एक्सिस पे कोई पॉइंट लें आर डिस्टेंस पे, और ऐसा का ऐसा ही पॉइंट हम आर डिस्टेंस पे इक्वेटोरियल लाइन पे लें, तो दोनों पे फील्ड इंटेंसिटी में क्या डिफरेंस रहेगा? तो फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड एक्सियल पॉइंट पे ट्वाइस होगा, ट्वाइस दैट इज डबल ऑफ द फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम डाइपोल सेंटर। तो इस टाइप से हमें जो एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले हम डिराइव किए हमने, और हम ये नोट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल वेरीज एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, नॉट वेरीज एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एज इन केस ऑफ पॉइंट चार्ज, बिकॉज द फील्ड components of electric field intensity in case of electric dipole cancel out for larger distance के ऊपर प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज के कारण फील्ड इंटेंसिटीज जो है
उसके काफ़ी कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो जाते हैं, और कंपोनेंट्स कैंसिल आउट होने की वजह से, इन दोनों चार्जेस के कंपोनेंट कैंसिल आउट होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फार ऑफ पॉइंट यानी एट लार्जर डिस्टेंस रैपिडली है जो डिक्रीज होती है एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। दैट्स ऑल।